I think I should be discussing uh, my ideas about learning जी. someday. What is learning, and because the whole purpose of this exercise is effective learning of everybody who likes to participate. Mhm. And how would that happen? What is learning? I have certain ideas which were not like given to me by my school or anything. It was Mhm. because of the exposure, the deliberation, the reflection. Uh, we think that it's a very linear process, learning. When it comes from a teacher, teaching is a linear process. It has to be. I mean, you're yourself a teacher, you know that we have to go in a sequential way, Mhm. one step at a time. Because ये एक फिर दूसरा फिर तीसरा सीक्वेंस चलेगी और फिर इससे ये ऊपर की तरफ जाएगा. But learning as such, which is independent of the teacher actually, अगर आप देखें, तो that is not at all linear. It's quite Mhm. lateral. And it is in jumps. I mean, if you can never plan the next word that your newborn or an infant is going to speak, it's going to speak the way it's learning, और वो बिल्कुल. इसमें कोई predictability नहीं होगी. ठीक है जी. And this is the way learning happens for me. When I look back on my life, I keep giving this example, and I've given it many times, that we prepare our CVs as if it was all planned, Mhm. and we try to give the impression that there were no accidents that happened and took us where we are now. I think we need to be a little honest with ourselves that this is not the way it was. There were many accidents that have brought us here. वो जो पिछली दफा अमार साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक सवाल किया था, मैं समझ नहीं सका था. Mhm. I felt that it was मैं I was probably, I don't know, I got distracted or what, but I think it was a very good question to clarify what I mean by purpose. उन्होंने ये मिसाल दी थी कि अगर कोई माँ खाना बना रही है तो उसका मकसद खाना बनाना है. नहीं, उसका मकसद खाना बनाना नहीं है. आपने बड़ी अच्छी बात की थी लास्ट टाइम, that Mhm. when you look at self assessment and you talk about what should be your purpose, it is not about achieving any target. It is about being somebody higher than what you are, Mhm. inshallah. है ना जी. दैट टारगेट, एक माँ जब खाना बना रही है तो उसका पर्पस असल में एक अच्छी माँ होना है, ना कि खाना बनाना है. खाना बनाना उसका इस वक्त की जरूरत है. और Mhm. इसी में अगर बच्चा गिर गया और उसको चोट लग गई है, तो अब अच्छी माँ का ही तकाजा ये है कि उसकी तरफ फिर जाए. पर्पस चेंज नहीं हुआ, गोल इमीडिएटली चेंज हो गया. यानी जी, दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट कि वो क्या क्या कहना चाह रहे हैं. उन्होंने असल में इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेजेंट किया, एज इफ द व्हाई हैज चेंज्ड. द व्हाई हैज नॉट चेंज्ड. Mhm. द व्हाई इज एग्जैक्टली द सेम. द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट व्हाई हैज चेंज्ड. और ये वो फेट है जिसकी वो पिछली दफा हमजा बात कर रहे थे, कि समटाइम्स वी आर ऑन ट्रैक फॉर समथिंग which we value, which we know is important, but God has other plans. So I believe that unless we facilitate, we allow people to exchange. मेरी जो आमतौर पर जो सेशंस होते हैं, उनमें तो बड़े लंबे ब्रेकआउट रूम्स होते हैं, और people exchange and people talk, and I always have this वो जो हमने शुरू में किया था, नॉर्म्स अपनी सेट की जाए कि वो क्या हैं. Mhm. उनके ऊपर अगर बात होती तो असल में इधर पहुंच जानी थी कि मेरी assumptions क्या है about learning. Mhm. Because I do not ascribe to the idea that learning can be influenced by the facilitator. It can be, it should be, but it cannot be controlled by the facilitator. I mean, this is the spilling theory of learning. आप information दे रहे हैं या आप reflection दे रहे हैं. बिल्कुल. मैं जब आपसे ये पूछता हूँ कि बिफोर द इवेंट क्या सवालात आएंगे आपके दिल में, बिफोर द इवेंट, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आप क्या कहेंगे. एब्सोल्युटली नॉट. मुझे बिल्कुल नहीं पता. आई एम टेकिंग a jump which is into uncertainty, and teachers don't like uncertainty. As a teacher, I never liked uncertainty, but now I cherish that. I feel that
that will keep me on my toes. सर उसके लिए आपकी तरह फिर तहम्मुल से बात सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। पहले तो ये अपनी भी सेल्फ असेसमेंट ये करनी पड़ेगी कि हम में ये आदत है कि नहीं है। ये बिल्कुल नहीं, सही। आपको ये देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या उस लर्निंग से एग्री करते हैं, उस लर्निंग की थियरी से। यानी मैं जिस जिस लर्निंग की असम्पशंस आपके साथ जब शेयर करूंगा तो आप इसको देखें। आप सिद्दीका तो टीचर हैं, अब्दुल रहमान, आई डोंट नो इफ आपका कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं, ताहिरा का या नशाबा का क्या कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस। यानी मैंने इसको बहुत दफा, और हर टीचर ने इसको हर जगह पे बहुत दफा ये करके देखा होगा लाजमन, कि आप अगर 10 बच्चों को या 3 बच्चों को या 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब forget about the 50 pupil class. If you're just teaching 4 students and you delivered the same lecture at the same time in the same environment to those 4 or 5 students or even 3 students, उनकी लर्निंग सबकी डिफरेंट होती है। जी जी बिल्कुल, इससे तो मैं एग्री करती हूँ। अभी रिसेंटली एक कुरान क्लास इसी तरह स्टार्ट हुई है, वर्ड्स मीनिंग याद करनी, तो उन्होंने 10 आयतें देनी शुरू की। तो मैं बोली कि ये बहुत ज्यादा है, एक वीक में याद नहीं हो सकती। लेकिन नॉर्मली सब एग्री थे। तो शुरू में एक वीक में बड़ी पैनिक होगी, मैंने कहा सब याद कर सकते हैं, मुझे 10 आयतें क्यों नहीं याद हो सकती। फिर मैंने कहा अच्छा वो उनको अल्लाह ने दिमाग दिया जितना मुझे दिया अल्लाह ने, तो मैं बस उसके मुताबिक करूं, मैं अपनी पूरी एफर्ट दूंगी, तो बाकी वो जहां मर्जी तक जाए कोई भी। तो राइट, राइट। अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं है। इसको अगर एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम बड़े आराम से ये कह देंगे कि ये एक स्लो लर्नर है, ये एक अच्छा लर्नर है, ये एक एवरेज लर्नर। ऐसा नहीं है। असल में ये इस तरीके पर ये स्लो बना है और इस तरीके पर वो तेज बना है। अच्छा, इस तरीके ने आपके अंदर कोई ट्रांसमसल, मिसाल के तौर पर ये चीज याद कर लेने से आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा। मे बी कल को आप जब कुरान पढ़ेंगे उस वक्त आपकी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर होगी। असल में फर्क उससे पड़ेगा, और वो जब आप कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो उस वक्त भी अगर ये 4 लोग बैठे होंगे तो हर एक डिफरेंट कर रहा होगा। वही कुरान पढ़ रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही टीचर है, ठीक है जी, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंड। असल में लर्निंग हैपेंस इन द ब्रेन ऑफ द लर्नर, नॉट इन द वॉइस ऑफ द टीचर। ये है जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना जी। और वो अगर गलत है तो देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मुझे यहाँ पर बैठे हुए इस वक्त 1 2 3 4 5 लोग हैं। अगर मैं कुछ पढ़ाना शुरू कर दूं और मैं ये जानना चाहूं कि आपकी लर्निंग क्या है और फिर आपको बोलने ना दूं, प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता सिर्फ उसी तरह चलेगा कि आपकी लर्निंग क्या है जब आप पूरी तरह बात करेंगे। एंड पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ टॉकिंग। अगर मैं आपसे कहूं कि देखें, हर आदमी ने 1 मिनट लेना है, तो एक आदमी के लिए हो सकता है 1 मिनट बहुत ज्यादा हो, और एक आदमी के लिए हो सकता है 1 मिनट कुछ भी ना हो। इसलिए कि वी आर ऑल डिफरेंट। कैसे प्लान करें इसको? यानी ये दिस इज समथिंग, ये जो हमने एक आर्टिफिशियल एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें हमने ये डिवाइड कर दिया कि ये क्लास 1 है और क्लास 1 इस एज में हो जानी चाहिए और इस एज के बाद इतना आ जाना चाहिए। ये कोई अल्लाह मियाँ का हुक्म तो नहीं है। इतनी एज में बच्चे को इतनी मैथमेटिक्स, इतनी इंग्लिश, इतनी उर्दू, इतनी साइंस। अच्छा, और फिर ये कि क्या अगर इस एज में नहीं आई तो कभी भी नहीं आएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज अर्ज करता हूँ। एट द एंड ऑफ द ईयर आप असेसमेंट करते हैं, और उस असेसमेंट में एक बच्चा जो है उसको आप कहते हैं ये फेल हो गया, और आफ्टर 2 इयर्स वो बच्चा जो है उस फर्स्ट आने वाले से ज्यादा जानता है उस सब्जेक्ट को जिसमें वो फेल हो गया था। डू यू थिंक वो वाकई फेलियर था? लेकिन क्या किया हमने उसके साथ? ये कुछ बड़े सीरियस इश्यूज हैं जी हमारी पूरी एजुकेशन में। और एक और इशू जो है वो ये है कि बिलमूम हम 2 काम जो हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा सोसाइटी के इम्पोर्टेंट तरीन काम है। नंबर 1, मैंने शायद इसका जिक्र किया था, एक बार मैं जा रहा था इधर फैसलाबाद की तरफ, लाहौर से फैसलाबाद जा रहा था, तो उधर एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि एनएलसी बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन, एंड आई रोट अ नोट ऑन दैट कि बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज नॉट, द रोड्स आर नॉट द फ्यूचर ऑफ द नेशन। फ्यूचर ऑफ द नेशन इज द मैन पावर, द ह्यूमन रिसोर्स।
इसमें दो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं जी, मेन काम। एक पेरेंटिंग एंड दूसरा टीचिंग। ठीक है। और ये दोनों ही चीजें जो हम कर रहे हैं, ये असल में रिफ्लेक्टिव नहीं है, बल्कि आमतौर पर जैसे हमारे साथ हुआ हम वैसे कर रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि इसमें क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या प्रॉब्लम है। वो जो हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कर रहे थे, उसकी बात इधर तक लानी पेश नजर है थी कि हम जब तक कि इसके बारे में सोचना नहीं शुरू करेंगे कि हम किन अजम्पशंस पे खड़े हैं और ये अजम्पशंस कितनी एक्यूरेट हैं या कितनी गलत हैं, उस वक्त तक हम अपनी प्रैक्टिसेस को रिव्यू नहीं। बिकॉज द ब्रेन इज अ लेजी टूल, यू नो, इट इट डज नॉट लाइक टू ट्राई न्यू थिंग। तो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप ये ओपन टाइम दे देते हैं लोगों को, तो इससे एक प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि अब आपके कंट्रोल कम हो गया। एंड वी डोंट लाइक लूजिंग कंट्रोल। ये आप कभी गौर करके देखिएगा, लूजिंग कंट्रोल मीन्स अनसर्टनिटी। ये कुछ मसाइल हैं जी, तो इसलिए सिद्दीका, आई एम रियली looking forward to your what would you decide to do about it, because honestly this is going to be interesting. Should we have an exchange on that someday? I mean, with those who are involved in teaching. I think that would be an excellent discussion, to be very honest. It would It be should be, so I good. think, जी very जी interesting. बिल्कुल। वो क्या है जो चीज जिसको लर्निंग है, एंड हाउ वुड यू डिफाइन लर्निंग? मैंने एक जगह पे लिखा था, मैं के उसको निकालता हूँ। ये मैं लिखता रहता हूँ इस तरह की छोटी मोटी चीजें, ऐसे ही अपने आप को खुश करने के लिए। तो one day I was writing this, and the first assumption that I wrote was the teacher teaches, the learner learns. Learning can be different from what the teacher taught. So true. Because, That's and beautiful. it's the way it is. This is reality. It is. It And if is. we want that, what is it that we want the children to learn? वो एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था जुनेद का, आपको याद होगा। जुनेद साहब जी से मेरी जी मुलाकात हुई। वो कमेंट ये था कि हम एस्टेब्लिश डेफिनेशंस क्यों नहीं लेते, इसलिए कि डेफिनेशन बनाना खुद एक लर्निंग का प्रोसेस है। ये बिल्कुल। रिफ्लेक्शन है, ये इटरेशन है। आगे बढ़ना, पीछे हटना, आगे जाना, अच्छा ये ठीक कर लेते हैं, वो ठीक कर लेते हैं। यही प्रोसेस जो आज एक्सपर्ट कहलाते हैं, वो उधर इसी प्रोसेस से पहुंचे। हम कोई आखिरी डेफिनेशन नहीं बनाएंगे, हम इसको प्रपोज भी नहीं करेंगे। हम एक वर्किंग डेफिनेशन बना सकते हैं। ये बड़े अहल लोग बैठे हैं, हम गौर करते, हमने गौर किया नहीं। आपसे अगर मैं कभी इस तरह के जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन हैं, जब इसकी आदत पड़ जाएगी, देन यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग। बट टू बिगिन विद, इफ आई वर टू से दैट, यू नो, why were you curious about it, why were you scared of it, this will require some explanation, you know, and that I don't have the right answer for that. We are so used to that Aristotelian questioning, that we know that this is the right answer and this is not. And what is the right answer? Which the teacher holds to be right, even if it is scientifically wrong. ये जो एस्पेक्ट है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं रहता। फिर सब लोगों की बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई दफा बड़ी गलत बात होती है और कई दफा बहुत ही यूनिक बात आ जाती है सामने। ये कुछ मसाइल हैं जी, जो कि सामने रखने हैं। और इस पर मतलब आई थिंक बिकॉज यू बीइंग अ टीचर, एंड द थिंग इज दैट the subject that you're teaching, as much as I know, if I'm not wrong, that is language, right? Gee, I teach three variations of that. So I teach just like English language speaking, you know, commonly known as ESL. Although Right, because I'm in Canada, so it's not really second language learning, it's actually two first language students. right. And then I also I'm a consultant for a financial company in which I help them edit and blah blah blah. And what you're saying, I had a debate, not a debate, I had a discussion with at one of the seminars that I attended, and then it ended up becoming a really good discussion
और उसका ये था कि वो कहते थे कि जो आप टॉपिक, जो वर्कशॉप आप बना रहे हैं, अगर हमारी वर्कशॉप आज है कि if I'm teaching a customer service department and how to communicate in a more polite way, for instance, तो उसका ये है कि ये हमारा करिकुलम है, ये आपने पढ़ाना है। जैसे आपने कहा लीनियर तरीका होता था उनका, ऐसे करना है। और मेरी काफ़ी बहस हुई थी इस बात के ऊपर कि हम उनसे क्यों ना पूछें कि वो जब वो सो कॉल्ड बदतमीजी से जवाब देते हैं या कुछ करते हैं, तो why don't we go backwards? हम उनसे क्यों ना पूछें कि उनको like just go backwards on it, right? तो वो काफी जो लोग बहस कर रहे थे इसके बारे में, उनकी भी कोई बातें सही थी कि फिर तो हम कितनी लंबी वर्कशॉप रखेंगे। Right. तो ये बात भी है, और कितनी वर्कशॉप्स रखेंगे। तो that was kind of a vicious circle जिस पे हम फंसे हुए थे। लेकिन आपकी बात नहीं, बिल्कुल उसमें देखिए vicious circle जो है, that's a very important point, Ji, and that is, I mean, this is at a micro level, you have completely entirely diagnosed the whole education system. ठीक है जी, क्या हो रहा है? Because we want predictability, ये इतने देर में ये कोर्स खत्म हो जाएगा, तो हमारा फोकस लर्निंग के बजाय टीचिंग पे है। ये देखें, यही हुआ ना यहाँ पे कि आपने करिकुलम बना दिया, आपने बता दिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, वर्कशॉप शुरू हुई, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंड टाइम है, खत्म हो गई लर्निंग। वो जो उसने, एक बड़ी अच्छी किताब है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। ये जेम्स कार्ल्स की एक किताब थी, मेरे ख्याल है 1980s में इसने लिखी थी, इन्फिनिट और फिनिट माइंडसेट के बारे में। इस पर अभी एक रिसेंटली साइमन सिनेक ने किताब लिखी है, और बहुत अच्छी किताब है, वही इन्फिनिट माइंडसेट। लर्निंग बेसिकली रिलेट्स टू द इन्फिनिट माइंडसेट, एंड एजुकेशन सिस्टम इज अ फिनिट माइंडसेट। यानी फिनिट माइंडसेट का ये मतलब है कि दैट, फॉर इंस्टेंस, आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस सेशन टुडे, I should, I should be liked. People should appreciate me. People should say this. People should, watch कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं, ये मेरी सक्सेस है। और कल को जब अगले हफ्ते सेशन होगा तो फिर यही होगा। ये जो फिनिट गेम्स हैं, ये कभी अनएंडिंग गेम्स हैं, एक के बाद एक शुरू हो जाती है। इट्स ऑलवेज इन कंपटीशन, ऑलवेज ट्राइंग टू असेस योरसेल्फ। और जो इनफिनिट माइंडसेट है वो ये है कि लाइफ इज अ कंटिन्यूएशन इन विच वी इंप्रूव। लर्निंग ये है, एजुकेशन वो है। क्यों बन गई वो? क्योंकि हमने उसको डिवाइड करके उसको ऑर्गेनाइज किया है। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि वर्कशॉप हो जाए। मैंने एक बार अपने अपने इंस्टीट्यूशन से ये पूछा था, अपने इंस्टीट्यूशन से मुराद है जिधर मैं जॉब कर रहा था, नौकरी कर रहा था, तो उनसे ये पूछा था कि आप मेरी जो वर्कशॉप करवाते हैं इसका मकसद क्या है? तो पर अच्छी अच्छी बातें की, ये लोगों में तब्दीली आती है, ये होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बेसिकली टू, एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम वर्कशॉप भी करवाते हैं। क्योंकि अगर मकसद ये कि तब्दीली आए, तो फिर मुझे मुझे इसमें इनपुट देने दें। तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली मेरे बताने से नहीं आएगी। if we really want to, I mean, let's say this problem that you just raised about training people in politeness. Why are they impolite? This is a very, very, very important question. I mean, if the whole institution is based on a hierarchy in which the elder can be impolite with the, you know, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी एक दफा कि your junior, these ground level employees are going to talk to your customers the way they are talked at. This is the culture of the organization. क्या करें इसका? मोहित साहब, यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहूँ। जी जी, बिल्कुल अस्सलाम कही वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत डिस्टरबेंस है, कल से बिल्कुल लाइट नहीं है, फोन चार्ज नहीं है, बड़े प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे ये इस बात से जो है रिलेटेड बात ये है कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, वहाँ पर यही सब जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है कि आपने ये कोर्स इतने उसमें करवाना है।
और आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, सबका फोकस यही होता है। इवन मैंने ऐसे स्कूल भी देखे हैं जो 8th क्लास तक तो अपने बच्चों को बड़ी अच्छी लर्निंग करवाते हैं, लेकिन उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वाली लर्निंग करवाते हैं, लेकिन 9th-10th में आकर जब वो कहते हैं कि अब किसी बोर्ड के पास जाना है, तो हमने सेम वही पैटर्न यूज करना है जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट है। सॉरी। तो अब आप मुझे बताएं कि जब इस सोसाइटी में आप रहते हैं, तो इस सिस्टम को आप कैसे चेंज करेंगे? आपको कौन पसंद करेगा कि आप अपनी चीजें जो है वो यहाँ पर लेकर आए, जबकि सब लोग जो है वो इसी चीज को कर रहे हैं कि जी कोर्स खत्म करवाना है, इस पैटर्न पे करवाना है, इन चीजों का रट्टा लगवाना है। तो ये कैसे हम, मतलब इसको, इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? ये तो हमारा मतलब सिस्टम ही यही है ना, आप कैसे चेंज करेंगे इसको? इतना तो सही कह जरूर रहे कर हैं आप। सकते हैं। इतना बहुत ज़रूर कर बहुत सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात। में जा सकते हैं। जी, तो इसी तरह अब हम वो डॉक्टर शकील अहमद से वो पढ़ी ना कुरान, तो वो कहते हैं कि उस्मानी मुसहफ यूज़ कीजिए ना, बजाय पाकिस्तानी या इंडियन मुसहफ के, हम वो मुसहफ अब आप देखिए, मैंने उसको जो पहला कायदा है उसको मैंने फोटोकॉपी करवाया, लेकिन यहाँ जितने जहाँ पे भी आप जाएंगे, कि कोई भी मौलवी साहब अपने बच्चों के लिए लगवाएंगे, वो उसको नहीं यूज करेगा। वो, और फिर ये हम्म, बच्चा जब सुनाएगा तो इसी कुरान से सुनाएगा, जो कि हमारे यहाँ राइज है इस वक्त। तो इस चीज पे हम्म, भी मैं बड़ी फंस गई हूँ आके, कि ना, जब एक जगह कोई इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, तो हम, हाँ जरूर अंडरस्टैंडिंग तो मैं जरूर करवा सकती हूँ अपने पोता पोती को, लेकिन ये लोग जब सुनाएंगे या स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा, तो वही पाकिस्तानी मुसहफ ही होगा, वो उस्मानी मुसहफ नहीं होगा। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हम्म। आती है कि हम क्या करें, तो समझ नहीं आता क्या असल करें में यार। वो तो उसकी तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखिए जो आपने एजुकेशन की बात की है, मैं इसमें एजुकेशन हो, पाकिस्तान मतलब आर्मी का सेटअप हो, जो कुछ भी हो, कोई भी सुपर ऑर्डिनेट सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हो, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप हो, इसमें असल में एक जो सवाल पैदा हो जाता है ना जी, वो ये है कि क्या आप मुतमिन है एज अ टीचर? अच्छा, अगर आप मुतमिन नहीं है एज अ सोल्जर कि जो मुझे हुक्म दिया गया वो ठीक है, एज अ सबॉर्डिनेट जो मुझे कहा गया वो ठीक नहीं है, और मैं उससे कंप्लाई करता हूँ, आपके ख्याल में ये जो बात है, मैं अर्ज कर रहा था कि आप क्या समझते हैं? देखें, एजुकेशन जो है ना, वो एक ऐसा ऐसा काम है कि जिसमें हम अपनी कौम का मुस्तकबिल बना रहे हैं, और अगर हमने उसको अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और अपनी कंफर्ट के लिहाज से तश्कील करना है, और ये सोचना है कि मैं इस सिस्टम में क्या कर सकता हूँ, देखिए उसमें आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, और ये जो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, ये सिर्फ एजुकेशन में नहीं पे करनी पड़ेगी, ये आपको कॉस्ट हर उस मौके पर पे करनी पड़ेगी जब आपका प्रिंसिपल जो कुछ आपसे कहा जा रहा है उसके खिलाफ है, और आप ये कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने प्रिंसिपल पे खड़े होना है। एंड दिस इज वेयर योर होल एग्जिस्टेंस, योर मोटिव, योर वाई, योर faith, whatever you might call your principles, they will all come in. इसका क्या हल है, मैं आपसे अर्ज करूं, वो हल ये है कि शायद हमें अपने बच्चों को इस चीज की भी तरबियत देने की जरूरत है कि वो करेजस हों, वो जिन चीजों के बारे में अपनी लर्निंग में इस चीज को ऐड करें कि टीचर से इख्तिलाफ हो सकता है। Compliance is not anything which will benefit you in your life. Compliance only benefits the elders जो कि काम कर रहे हैं। टीचर को बेनिफिट करती है कंप्लायंस, पेरेंट को बेनिफिट करती है, बच्चों को नहीं करती। सही बात है। Opinions आपको बच्चे को फायदा नहीं पहुंचाती, बच्चे को तो क्वेश्चनिंग फायदा पहुंचाती है, बच्चे को तो चैलेंज करना फायदा पहुंचाता है कि अच्छा मैं इसको भी देखता हूँ करके, लेकिन फायदा असल में पेरेंट का इसमें है कि वो मेरे कंट्रोल में रहे तो ओबीडियंट रहे। आई थिंक दीज आर सर्टन, जिन ये वही बातें हैं वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था जी, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना है कि क्या हम क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू वी वांट टू फैसिलिटेट? क्या मैं जब एक टीचिंग प्रोफेशन में आया था, आप सोचिए जरा वो टाइम याद कीजिए कि व्हेन यू, आपने टीचिंग क्यों ज्वाइन की थी? अगर सलमा आपा आप बताइए, अगर अगर आप पसंद करें, व्हाई डिड यू ज्वाइन टीचिंग? सर कोई मैंने जज्बा?
मैं जी विलिंग तो उस वक्त नहीं थी जिस वक्त मुझे मेरे वाले साहब ने इस प्रोफेशन में डाला। मैं लेकिन ये है कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जब कोई काम दे दिया जाता है ना, फिर उसके साथ बेईमानी नहीं करती बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ऑनेस्टली बहुत जितनी मैंने कोशिशें की हैं अपने गवर्नमेंट स्टूडेंट को, और वो भी बलूचिस्तान जैसे इलाके में जहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम जितनी ज्यादा हमने उनको अंडरस्टैंडिंग दी है, तो शायद यही वजह है कि अब मतलब कोई 20-30 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्टूडेंट मुझे विश करते हैं मेरी बर्थडे पर। तो वो शायद यही समझ कोशिशें थी। जी यही कोशिशें थी कि शायद इन लोगों को जो है ना क्वेश्चन करने दिया जाए, लेकिन मैंने देखा बिल्कुल माहौल नहीं है वहां पर, इस तरह का क्वेश्चन नहीं करने दिया जाता, बस रटो और जाओ और बस। तो अव्वल तो टाइम ही ज्यादा वेस्ट कर दिया जाता है, मेजोरिटी टीचर टाइम वेस्ट करते हैं, यानी कि क्लास में देर से जाना, जल्दी निकल आना, या ऐसे फिर ही जी। करना, ये सारी चीजें ये है चल रहा। लेकिन सर वो वही वाली बात है ना, मुझे तो अपने आप को देखना है ना कि मैंने क्या करना, मैं इनको क्या दे सकती राइट, थी और मैंने क्या दिया, बस यहीं पे खड़े रहना है हमेशा। ये बात अब है जी। वो जी। और और ये इस पे खड़े रहने में अगर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, हाँ, तो इस कोई चीज फर्क को नहीं। याद रखिएगा हमेशा। तो वो अप्रिसिएशन आप जिसके लिए कर रही है, वो शायद इस दुनिया की चीज नहीं है। बिल्कुल सही बात। और ये आपका कितना ये आपकी ये अच्छा। मेहनत जाया नहीं जाएगी। ना बिल्कुल सर, और नहीं गई जाया, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गई जाया, जितना हम उनको फैसिलिटेट कर सकते थे। लेकिन सर एक और भी बहुत बड़ा यहाँ पे फ्लॉ है कि ना, मेरिट बेस पे नहीं आते ना लोग अब टीचिंग उसमें प्रोफेशन में, तो आपको वो टीचर ही नहीं मिलते जो आप जो इन बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। एक ये भी बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में। नहीं, हम सही कह नहीं रहे पढ़ हैं। सकते, आप सही यकीन कह रहे करें, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कोई नहीं पढ़ा सकता, मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, गिनती के टीचर होते हैं, और फिर उनपे इतना ज्यादा बर्डन होता है, बहुत सारी चीजें हैं सर ये तो। लेकिन बस वही है ना कि बस हम वेरी जो कर ट्रू जी, सकते हैं वेरी ट्रू। लेकिन सर लेकिन वही है, बहुत अफसोसनाक सिचुएशन। अपने रिश्ते की क्षमा जला दो बस। ट्रू। बाकी ये है कि यही यही अप्रोच है। जी आपका आपका बेहतर है। काम जो है वो आप ही ने करना है, और वो जाया नहीं होना। इस यकीन के साथ करें कि वो ना हो अप्रिशिएट, उस पर तनकीद हो जाए, आपको निकाल दें, मैं मेरी तरफ से कोई गलत कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, सही बात है। मैं लोगों का नुकसान नहीं करूंगा, मैं बेशक। उनको शॉर्टकट नहीं बताऊंगा। ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है, जो अभी आपने देखी कितनी खूबसूरत बात फरमाई है, 8वीं जमात तक वो कहते हैं लर्निंग पे फोकस करो। मैं ये समझता हूँ कि ये जो 9वीं 10वीं की आपने बात की, ये भी टाइम जाया करते हैं। यानी 9वीं 10वीं के इम्तिहान की तैयारी जो है वो आखिरी 2-2 महीनों में हो सकती है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन असल में है क्या वो, असल में क्या है? हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि जो मैन मेड सिस्टम्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसको क्रैमिंग कहते हैं। सही। ठीक है जी, वी कैन क्रैम इट अप। वो जो 2 साल का प्रोग्राम था उसको हम मैंने मैं ऑनेस्टली आपके साथ बड़ी शर्मिंदगी से ये अ, इसका इसका इतराफ करता हूँ कि ऐसे इम्तिहानात हैं जो मैंने अपने मास्टर्स लेवल की क्लास में दिए हुए हैं, जिनकी मैंने 3 दिन में तैयारी की है, बुक खोल के भी नहीं देखी थी, मुझे पता था कैसे तैयारी करनी है। दैट वाज द माय ओनली रीजन। गॉड। ये मैंने स्कूल में सीखा है ये, हाँ हाउ डू यू सही गो बात। अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। ये लेकिन लर्निंग उसमें कुछ नहीं हुई। क्या मकसद था? एक टीचर किस लिए आता है? इसलिए आता है कि बच्चे के ग्रेडिंग कर दे। ग्रेडिंग की क्यों जाती है? मुझे तो ये भी आज तक समझ में नहीं आई। व्हाई डू वी नीड टू ग्रेड चिल्ड्रन? अभी लेकिन पिछले दिनों ये बात हो रही थी मेरी एक साथी से एजुकेशन के हवाले से। मैंने कहा पहले उसका मकसद तय करें, एजुकेशन क्यों देनी है, मकसद तो तय करें। सही कह रहे हैं सर। इंफॉर्मेशन स्पिलिंग है ये। सर आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ। अभी रिसेंटली मेरी बेटी के साथ एक बच्ची थी, वो 3rd ईयर ऑप्टोमेट्री के उसमें थी, तो किसी वजह से वो एग्जाम सही नहीं दे सकी, और वो उसे ना स्कूल से निकाल ही दिया। तो अच्छा। उस बच्ची बेचारी की यानी 2 साल की मेहनत, 2.5 साल की मेहनत अलहदा, पैसे अलहदा। और तो मैं मरियम को, अपनी बिल्कुल। बेटी को कहती, बेटी बहुत अनफेयर है कि उसको रिपीट करवा लेते या उसको ऑप्शंस देते, ये क्या बात बनी कि उसे निकाल ही दिया 3rd ईयर में जाके। उसका पूरा फ्यूचर बिल्कुल। इन्होंने खराब कर दिया बच्ची का। तो कहती है मामा वहां जाके कौन बोले।
तो मैंने कहा नहीं, उसको उससे निकाल तो दिया था, लेकिन उसे बोलना चाहिए था जो कुछ उसको अपने लिए बात करनी चाहिए थी, तो और वो चुप करके चली गई बच्ची कि उसने कहा नहीं। इसलिए कि उसको पता है कि कोई सुनवाई नहीं होगी, नहीं बिल्कुल, तो कोई अभी सुनने वाला मतलब नहीं ये आएगा। यहाँ अमेरिका की बात मैं कर रही हूँ कि हत्ता कि यहाँ पे इतने राइट्स, इतना जी सब कुछ बोला जाता है, तो वो कितना अरसा बच्ची इतना डिप्रेस रही कि मतलब मेरा फ्यूचर क्या है अब। मेरे पे लोन भी इतना आ गया, और मतलब थर्ड ईयर में किसी बच्चे को निकालना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रही थी बेटी को कि कोई वे होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। आप खुद देखो कि उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चे को, आप उसको हेल्प करो इसके कि आप बच्चे को और बिल्कुल वो कर दो, लाइक हैंडीकैप टाइप बना दो कि मतलब वो बेचारा कहीं ट्रू, का रहे ही ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही बात है जी। पॉलिसीज हमने बनाई है, बनाने के बाद हम ही समझते हैं ये खुदादाद चीज है, कोई इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए। हर पॉलिसी के अंदर देयर आर एक्सेप्शन, हम उसको बिल्कुल लॉजिकल बेसिस पे देख सकते हैं, उसकी कुछ रीजंस होती हैं। एवरी डिस्क्रेशन हैज इट्स ओन ऑब्लिगेशन, कि उसको यूज करते हुए हम गलत नहीं यूज करेंगे, उसकी रीजन होगी। बट हाँ दिस इज नहीं सर, सो अनफॉर्चुनेट। तो लेकिन यही वही बात है कि अच्छा टीचर भी आपको अगर मिल जाए तो वो आपकी लाइफ और उस सब्जेक्ट से मोहब्बत पैदा करवा देता है उस चीज से आपकी। और अगर टीचर अच्छा ना हो, 100%, 100%। आप अपनी जिंदगी पे गौर करके देखिएगा, पूरी ये जो शुरू की थी ना स्कूल एज, और 10वीं 12वीं तक, तो आप देखिएगा कि जो टीचर अच्छा लगता था उसका सब्जेक्ट भी अच्छा लगता था। असल में सब्जेक्ट हाँ, से टीचर नहीं अच्छा लगता, टीचर से सब्जेक्ट अच्छा लगता है। टीचर से बिल्कुल सर, बिल्कुल सीधी हाँ। सीधी बात है ये। सर हमारे मैथ्स के ब्यूटीफुल। टीचर होते थे तो वो हमें बड़े अच्छे मुझे लगते थे, और उसमें मार्क्स भी बड़े अच्छे आते थे। और उसके ऑपोजिट बायो में बस इतने ही आते थे कि बस पास हो जाओ। तो तो वो बिल्कुल हमारी सही। क्लास टीचर भी थी। तो बिल्कुल। वो मुझे कहती है कि बायो में तुम इतने लेती हो कि सिर्फ पास हो जाती हो, और मैथ्स में तुम हाईएस्ट में चली जाती हो। बिल्कुल सही। तो उससे कह तो रहे मैथ्स की टीचर से कहे बायो पढ़ा दिया कि नहीं। तो वो टीचर से बहुत फर्क पड़ता है सर, मतलब अच्छी आपको बचपन के, अब मुझे अगर अपने बहुत छोटे ग्रेड के भी जो टीचर हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से जो बातें सिखाई थी ना, वो आज तक मैं उस पे अमल करती हूँ। मतलब मुझे उनकी बातें कानों में गूंजती हैं कि वो बिल्कुल। किस तरह उन्होंने चीजों से, मतलब अपने कुछ टीचर ऐसे थे जिन्होंने दीन से मोहब्बत सिखाई हमें, कुछ ऐसे थे जिसने हमें मतलब झूठ बोलने अब बंद करवाया, मतलब और वो तमाम टीचर याद हैं अभी तक, मतलब हमें कि वो किस तरह तो उनकी एफर्ट्स थी। क्योंकि पहले मतलब अब वो टीचर उस तरह, पहले जिस तरह जो दौर था जब हमने पढ़ा था, तो टीचर माँ बाप का किरदार अदा करते थे, और अब वो चीज नहीं रही। मतलब अब पेरेंट्स और टीचर्स में बहुत फर्क आ गया, मतलब वो वाला नहीं है एटीट्यूड। तो वो आपकी मतलब से पढ़ाते ही ऐसे नहीं ही जी। थे, आपकी इखलाकियात पे भी, बच्चों की डिसिप्लिन, हर चीज पे वो फोकस करते होते थे। वो प्यार से क्या समझाते इम्पोर्टेंट थे। बात है। तो अब तो और ये इंटरेक्शन ही नहीं मैं होता। ये कहता हूँ जी कि प्रॉब्लम ये है कि आप एज अ टीचर, let's say Siddika is a teacher of ESL. Maybe someday there can be. I have gone through such days where I could not prepare for my next lesson, and on that particular day, I never contributed to the technical knowledge that I had to deliver to my students when I used to be, when I used to ascribe to that spilling theory of knowledge. But there can be no day, कोई एक भी वो दिन नहीं हो सकता जब उस्ताद अपनी वो खा वो केमिस्ट्री पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, मैथ्स पढ़ाता है, जो भी पढ़ाता है, ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता। ये तो दिन आ सकते हैं कि वो अपने अपने सब्जेक्ट को ना पढ़ा सके, ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जब वो बच्चों के किरदार में कोई कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली या नेगेटिवली ना कर रहा हो। आ ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि हम हर वक्त ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। वी आर रोल मॉडल, क्या करें। बिल्कुल सर। और किरदार की तामीर एक ऐसी चीज है जी, मैं आपसे अर्ज करूं, किरदार की तामीर कभी जीरो पे नहीं होती। इफ यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, वो किसी ने कहा ना, इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग यू आर रेट्रोग्रेडिंग। यही किरदार है, यानी अगर मैंने अच्छा नहीं दिया तो फिर बुरा दे दिया है, जीरो नहीं है। इट विल नेवर बी जीरो, इट विल ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या देना है, और पॉजिटिव Absolutely. सिर्फ कॉन्शियसनेस के साथ होगा,
नेगेटिव अनकॉन्शियसली भी हो जाएगा, बल्कि अनकॉन्शियसली नेगेटिव ही होगा। जी सर, एब्सोल्युटली आपने 100% सही बात की। सर इन द एंड एक टीचर और दूसरे टीचर में फर्क होता है। मैं समझती हूँ आपने सही कहा। देखें, एकेडमिक एजुकेशन और लर्निंग फर्क चीजें है ना। एक कोर्स तो प्लान होना ही चाहिए, वरना कोई टीचर कहीं ले जाएगा, कोई कुछ करेगा। लेकिन एकेडमिक जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा, हम वैल्यूज इम्पार्ट कर सकते हैं, हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। आई हैव बीन अ टीचर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और माशाल्लाह। सर जिस सिस्टम में मैं पढ़ाती थी, मतलब हम कोर्स जो होता था वही पढ़ाते थे, लेकिन एक रूम था, हम बहुत कुछ और बताते थे। और मैं अपने सिस्टम की ये बात जरूर करना चाहती हूँ कि देखें सर, जनरली जो सिस्टम्स होते हैं, आप भी जैसे कह रहे हैं ग्रेडिंग की बात और सब कुछ, हम समझते थे कि वो उस सिस्टम में ये लेट डाउन था कि टीचर ऑफ द मंथ उन टीचर ने बनना है जो अपने वीक स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करेंगी। बहुत सारे मैंने स्कूल्स में देखा है और हर जगह गालिबन टीचर की नजर अपने ब्राइट स्टूडेंट्स पे होती है। होते हैं ना सर, कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ नहीं, उतने ब्राइट नहीं होते। जाहिर है हर बच्चा अपनी जगह तो एक होता ही है कमाल। तो आम तौर पर एक टीचर की नजर होती है अपने वो जो फर्स्ट वाले बच्चे हैं, बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल एंड बिल्कुल। टॉप वाले स्टूडेंट्स। तो जब हमारे सिस्टम में ये लेट डाउन था, टीचर ऑफ द मंथ उनने बनना है जिन्होंने, तो फोकस होते थे वो बच्चे जो इतने ब्लेस्ड नहीं हैं। क्लेवर बच्चों को तो आपको बताने एक बात कहेंगे उनको समझ में आ जाएगी, और दूसरों को रीच आउट करना। मैं समझती हूँ कि हमने राइट। अपने में इतने बच्चों को इम्प्रूव किया उस सिस्टम में, और माशाल्लाह। मुझे तो बहुत चांसेस मिले। मतलब ये मुझे समझ आ रही है जो आप बातें कर रहे हैं, बट एक टीचर और दूसरे टीचर में एंड में सर मैं समझती हूँ बहुत बहुत फर्क होता है। मैंने भी अपने बहुत टीचर ही से बहुत। बहुत इंस्पिरेशन और बहुत हासिल किया, और अपनी तरफ से हमने भी जो कर सकते थे। और बड़ी खुशी होती है जब आप उनको उनमें वो देखते हैं, यानी कोई प्रिंसिपल्स देखते हैं जो शायद आप नहीं सिखाए, तो उससे ज्यादा रिवॉर्डिंग मेरा ख्याल है दुनिया में कोई चीज नहीं होती जब आप अपने कुछ नहीं है, बच्चे को वाकई जी, इस तरह से। वाकई। सो ट्रू, सो ट्रू। इसमें बस एक चीज जो मैं आपसे चाहूंगा जी, वो जो अभी आपने बात फरमाई कि अ, हमें उसको रखना। मैं ये नहीं कहता जी कि इट शुड बी ऑब्वियसली। इधर हम बात कर रहे हैं आज तो हमारा सेशन गपशप में निकल गया। अच्छी गपशप रही माशाल्लाह। आई थिंक आई रियली एंजॉयड दैट। लेकिन मैं वैसे भी अपनी आवाज सुननी पसंद है जी, ज्यादा बोलने का मौका मिल जाए तो मैं एंजॉय करता हूँ। तो बट द थिंग इज, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो हम लाइफ स्किल में जो काम कर रहे थे अबाउट सेल्फ असेसमेंट, इसमें ओपन नहीं छोड़ेंगे। असल में मेरा मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो करिकुलम है उसको क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया जाए। एड्रेस द क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एंड गेट देयर इनपुट, रिफाइन देयर इनपुट, उन्हीं के जरिए से रिफाइन कराई जाए। ये रिफ्लेक्शन पैदा करेगी। जवाब दे देने से असल में मेरा, बल्कि इसमें एक पॉइंट एक और भी है जो मैं समझता हूँ कि विच हैज बीन, मैं उसको कहता हूँ कि यही हमारी रिलीजियस एजुकेशन का एक सबसे बड़ा फ्लॉ है। वो कल मैं एक जगह बात करते हुए मैंने ये कहा भी था कि हमारी एजुकेशन का जनरली और रिलीजियस एजुकेशन का पर्टिकुलरली ये फ्लॉ है कि सवालात के बगैर जवाब दे दिए जाते हैं। वी डोंट वी डोंट क्रिएट क्वेश्चंस, एंड इसका नतीजा एक निकलता है कि जवाब की इतनी अहमियत नहीं होती। आपको अगर अपनी अपनी इंक्वायरी का जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एन आंसर टू अ क्वेश्चन, दैट आंसर वुड बी लाइक gold for you when you find it. But if you're given gold without wanting it, it will have no value for you. फिर Questions फिर पैदा से करें। बोलिए कोई बात। आपका अगर सवाल नहीं है, देखिए मजहब असल में कुछ सवालात का जवाब है।
हम जिस वक्त मजहब सिखाते हैं लोगों को, उस वक्त उनकी वो एज ही आमतौर पर नहीं होती कि वो सवाल उस पे उन चीजों पे गौर किया हो उन्होंने कि वो सवालात पैदा हुए हों। मजहब एग्जैक्टली। बेसिकली क्या है, ठीक है जी। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो असल में बच्चों के जहनों में जब सवाल पैदा होगा और मजहब का आंसर मिलेगा, और फिर बेशक सारे ही मजाहिब का आप उसको एक्सपोजर दे दें, मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब असल मसला ये है कि उसके पास सवाल है, और वो उसका सवाल जो है वो जिधर सेटिस्फाई होगा पूरी तरह से, वो असल में उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा और वही उसका ट्रू फेथ बनेगा। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे सारे फेथ के कलमात बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन फेथ अपनी जगह पे मौजूद ही नहीं होता, क्योंकि वो हमारे दिल से निकला ही नहीं होता, जरूरत ही नहीं होती उसकी, वो सवाल ही नहीं है। मेरे से लोग ये पूछते हैं कई दफा ये सवाल करते हुए कई क्लाइंट्स ने किया है कि वाई मी, वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं क्या कीता सी, मैंने ये क्या किया, मैंने क्या गलती कर दी, मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? तो मैं उनसे ही पूछता हूँ कि आपके ख्याल में ये अल्लाह ताला कर रहे हैं? कहते हैं मुझे नहीं पता, ये तो मेरे साथ तो मेरे भाई ने जाती की है। मैं तो फिर वाई डू आस्क कि वाई मी? फिर ये रैंडम हो रहा है, अगर अल्लाह ताला की तरफ से नहीं हो रहा फिर तो रैंडम है, फिर इस पे सवाल किस बात का? पहले इसको तो समझे ना कि हमारा पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है क्या, हाउ आर वी अप्रोचिंग फेथ। वो इस पर है जी, इंशाल्लाह। मैं अगर अगली दफा इस पे भी, सिद्दीका प्लीज, नाउ दैट वी आर कमिंग टू द एंड, ये प्लीज सोचिएगा जरूर कि हमको should we should we start off this, should there be a quorum, because otherwise, like if we keep depending on the numbers, this might never start. तो क्या हम इस तरह करें कि कोई कोरम तय कर लें, 3 लोग हैं 4 लोग हैं तो हम शुरू कर लेंगे? क्या करना चाहिए इस पर? प्लीज आप लोग अपना इनपुट दीजिएगा। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? Like, what, because you've been teaching this workshop particularly in many different settings. So what is your thing? I have absolutely no problem as long as those who are regular, who wish to attend regularly. देखिए, emergencies तो अल्लाह ताला, मेरे साथ भी हुई है, कई दफा हुई है, किसी के साथ भी हो सकती है, बट एज लॉन्ग एज दोज हु वांट टू अटेंड रेगुलरली, वो अगर समझते हैं कि हम इतने बजे तक आके तो शुरू कर लिया करें। आई Mm-hmm. थिंक उसमें क्योंकि घंटा डिस्कशन बेस्ड क्लास के लिए वैसे ही कम है। जी। एन आवर इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ डिस्कशन बेस्ड क्लास, कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्लास। पहली दफा जब ली थी 3 घंटे की क्लास थी और उसमें लोग कह रहे थे पता ही नहीं चलता, बट ऑब्वियसली उसमें फिर मिसिंग बहुत होती थी बिकॉज पीपल हैड देयर ओन एंगेजमेंट। तो अगर हम शुरू कर सकते हैं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद 5 people, 4 people, 3 people, those who want to continue regularly, no problem. जी। But if मिस, तो फिर मुझे तकलीफ होनी शुरू हो जाती है कि यार ये तो मिस हो गया, वो पीछे रह जाएंगे, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या हम कोई एक्स्ट्रा क्लास करें, ये सारी चीजें फिर प्लानिंग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो भी आप डिसाइड करेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है। आई सर स्टार्ट कर देना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट हों उन वो तो कुछ सीखे ना। शुरू कर देना चाहिए, जी। जी शुरू कर देना हाँ चाहिए। जी असल में उसमें बस ये है कि हम फिर कोई कोरम जरूर डिसाइड कर ले, नहीं? डोंट यू थिंक दैट विल बी बेटर? आई एम सॉरी जी, यानी मेरा कोरम से मुराद है कि मिनिमम नंबर इतना हो जाए, अगर लेट से 4 लोग हो जाएं, 5 हो जाएं, जो भी आपने मिनिमम डिसाइड करना है, ताकि हम उसको लेके चलें। फिर ठीक है, किसी ने बाद में ऐड करना चाहेगा कर ले, ना करना चाहे ना करे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जी सर ये कोई मेरा ख्याल पॉपुलैरिटी में कॉन्टेस्ट तो है नहीं। सर आपने मेरे ख्याल में ऑन द डॉट स्टार्ट करना चाहिए, जो भी आपका प्लान है। आई आई एग्री। मतलब असूली तौर पर तो ये सही बात तो यही है। जी सर, अगर जो किसी ने बाद में ज्वाइन करना है तो वो आपका लेक्चर पिछला सुन के कुछ ना कुछ तो कैच हो ही जाती हाँ है चीजें। पीछे सुन सकते हैं, बिल्कुल। आज तायरा आपा, आपसे गुजारिश ये, आज ऑन द डॉट अगर मैं शुरू करता तो मैं अकेला ही बैठा होता जी। कि मैंने भी लेट ज्वाइन इस किया। सूरत में मैं क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी लेट ज्वाइन किया था,
बट मैं समझती हूँ जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल तो यही है, होना चाहिए कि ऑन द डॉट प्रिंसिपल तो जो यही भी है, आप प्रिंसिपल तो यही है। क्या है, अब डिस्कशन बाद में, और पहले आप अपना करें। कोई बात नहीं, अगर कोई भी नहीं है सर, मेरा तो यही ख्याल है। मैं अगर आपकी जगह पे हूँ, और मैं कभी भी आपकी जगह पे हो नहीं सकती, ना ले सकती हूँ, तो मैं फिर नहीं ये नहीं करूँ। नहीं नहीं है, बस ये थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ी सी अपनी तबीयत पे मुझे काबू पाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा वो जो है ना जी, प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि मैं अपने आप ही को सुना रहा हूँ। कम की है मैंने इस तरह से कैमरे के आगे बैठ के कि बस ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया। ऑडियंस से कुछ हूँ हाँ आती रहे तो जरा थोड़ी सी हौसला रहता है कि लोग सुने। सही है। लेकिन लेट्स थिंक अबाउट इट। अब्दुल रहमान, आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद, आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। मैं बस ये बोलना चाह रहा था कि क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ नहीं, तो इसलिए इस डिस्कशन में ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। बस लास्ट आई थिंक इट्स टू लेट फॉर मी टू से दैट, बट ये बोलना चाह रहा था कि एंटायर सिस्टम इज, ये जो अभी बाकी के मेंबर्स जो डिस्कस कर रहे थे, सेम सिचुएशन हियर इन इंडिया एज वेल। तो एंटायर सिस्टम इज बेस्ड ऑन नॉट क्वेश्चनिंग। बस 5th पास करो, 10th पास करो, 12th खत्म करो, डिग्री करो कौन सी तो भी, इंजीनियर या डॉक्टर या लॉयर, और बस जॉब ढूंढो। सो बाय दैट टाइम अ पर्सन अंडरस्टैंड्स कि भाई आई हैव टू क्वेश्चन थिंग्स, इट्स टू लेट। और जब कोई बंदा क्वेश्चन करना चाहेगा दैट नो दिस इज ऑल रॉन्ग, द सिस्टम इज ऑल रॉन्ग, तो you will get a backlash from the society, you will get backlash from the parents. Our religious जो मुसलमान इस्लाम है, ज्यादा पूछो मत, ओनली जो बोल रहे हो सुनो, नहीं तो बिल्कुल। छड़ी। तो इस तरह का है सर कि आपका कल क्लिप आया था, शायद मैं देखा, कोई मेरे फ्रेंड कोई मुझे सेंड किए थे। तो उसमें आप ये बोल रहे थे कि बाय द एज ऑफ 3 years पर्सन इज ऑलरेडी डेवलप्ड। तो एंटायर सिस्टम इज मैं बोल बेस्ड रहा ऑन, हूँ शायद आप या कोई और थे सर, आई एम नॉट श्योर। ये पता नहीं कि बचपन में ऐसी कोई बात की होगी कि ऑनेस्टली, बिकॉज शायद आई एम नॉट श्योर सीरियसली। सर, क्योंकि मेरे पास इतने सारे क्लिप्स आ रहे हैं आजकल। आई रिसेंटली ज्वाइन राइट इन सम राइट। अदर ग्रुप, सो मे बी आई एम कंफ्यूजिंग इट विथ यू। तो आई एम सो सॉरी ऑन दैट। तो बेसिकली नहीं दैट नहीं वाज नहीं दैट्स नहीं। द पॉइंट, that 3 years या 5 years या 10 years, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस पर्सनैलिटी इज ऑलरेडी डेवलप्ड, और वो पर्सनैलिटी में क्वेश्चंस करने की आदत ही नहीं है। एंड बाय द टाइम पर्सन अंडरस्टैंड्स, इट्स टू लेट, यू आर चैलेंजिंग सोसाइटी। मैं जो प्रोफेशन में हूँ, आई आज लाइक, hey, why are you doing this? It's wrong, right? Don't ask questions. If you want to do the job, do it in this way. Otherwise, you can search for another राइट। job. और कुछ 2 दिन पहले वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त ने, कि भाई आई आस्क्ड हिम लाइक, ये जो रिलीजियस क्वेश्चन था कि भाई ये आसार मुबारक आपको पता है कहाँ से आ रही है, कौन इसको आसार मुबारक कहा, इज इट रियली फ्रॉम द प्रॉफिट? तो मैं इतना डीप में नहीं सोचता, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सिचुएशन है सर, स्पेशली इन मुस्लिम्स। सो रिलीजियस एजुकेशन मैं डीप इटसेल्फ में इज सोचने लाइक, को कुफर समझता हूँ। सही बात है। ट्रू जी ट्रू, सर। ऐसा ही है। मैं असल एक में ये देखिए ये किस हेजेमनी कायम होती है। जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। I'm so sorry to interrupt, but मेरे वो एक नहीं I नहीं just want नहीं। to add one thing. It's just on the tip of my tongue. ये जेम्स क्लियर ने जो किताब लिखी है ना, Atomic Habits, I find कि हम उसको इस हमारी जो सोसाइटी है, इंडिया, पाकिस्तान, मजहब, घर, स्कूल, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज जेम्स क्लियर कहते हैं कि एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट एट एटॉमिक लेवल। मतलब आपने अगर कोई भी चीज करनी है, इंक्लूडिंग के मैंने कल से जिम जाना शुरू करना है, लेकिन मैं हर रोज सुबह उठ के लेजी हो जाती हूँ, तो उसका पहला तरीका ये नहीं है कि मैं सुबह उठ के बस जिम चली जाऊं। तो इनकरेज बेबी स्टेप्स लेने हैं। मैं रात को अपने जूते बाहर रख के सोऊं, अगले दिन मैं अपनी सॉक्स रख के सोऊं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई थिंक कि ये हमारा जो एक जो मसला है, जो हर कोई कह रहा है, या स्कूल में है या इवन जॉब्स में है, और ये हमारा एटॉमिक लेवल पे बहुत बड़ा मसला है। हम लोग घर में भी सवाल नहीं कर सकते। अगर
मैं अपनी बेटी से कहूँ कि नो यू कैन नॉट गो आउट टुनाइट विद योर फ्रेंड्स, बस मैंने कह दिया ना। और ये तो एक वो फिर बॉलीवुड का डायलॉग भी बन गया है, बस कह दिया सो कह दिया। मतलब ये तो हमारी एक वो कल्चर में इतना डीप रूटेड है कि वी कैन नॉट आस्क क्यों। सो समटाइम्स आई थिंक हमें ये देखना होगा, आई थिंक वी नीड टू गो एट अ वेरी एटॉमिक लेवल एंड वी नीड टू स्टॉप एट दैट फर्स्ट जो हम सवाल करने को रोकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये ओवरनाइट तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन इमेजिन कि अगर हर कोई बिल्कुल बिल्कुल छोटा लेवल पे करना शुरू कर दे तो इम्पॉसिबल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही जी। दिस इज व्हाट गिव्स अस होप इंशाल्लाह इफ वी आर इन। और फिर देखें, एक चीज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टारगेट चेंज नहीं है, हमारा टारगेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करना है। इस जगह खड़े हो जाए, यानी मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने अच्छा, मेरे से, मेरे वजूद से इस दुनिया में एक रत्ती बराबर खुशबू फैल जाए, बस ये मेरी जिम्मेदारी है, बदबू ना फैले। आई शुड नॉट बी कंट्रीब्यूटिंग टू द mess in this world. I should be contributing to something that, वो जो किसी ने बड़ी अच्छी बात की, अपने हिस्से की, जो आपने आपने ही बात की थी, सलमा ने शायद बात की थी, अपने हिस्से की क्षमा जी सर, दिलानी। नहीं, मेरे ख्याल नौशाबा ने की, आपने की नहीं थी। सर मैंने की तो सर। अपने, हाँ, नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक थी, नौशाबा ने नहीं की। वो आपने अपने हिस्से की क्षमा दिलानी है, हम सब ने यही करना है। वो शमा कितनी देर कायम रहनी है, उससे रोशनी फैलानी है नहीं फैलानी, ये रिजल्ट खुदा के हाथ के हैं। अपना प्रोसेस पूरा कर देते हैं और अल्लाह के हुजूर, वो जो वो जो सूरह आराफ में गया ना, माजरतन इला रब्बिकुम, बस इसको लेके पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। परवरदिगार जो कर सकते थे वो किया, उसमें कोई कमी नहीं की इंशाल्लाह। सर एंड पे कोई टिप देते जाएं कि जी। कॉन्शियसनेस को अपनी जो है उसको कैसे स्ट्रांग रखें, क्योंकि आप होते हैं कि हमने ये चीज करनी है, आप उसके बारे में सब नॉलेज भी रखते हैं, पर जब प्रैक्टिकल का टाइम आता है तो वो सारी चीजें आपकी पीछे रह जाती हैं, मतलब जो कुछ आप, तो उसको कैसे आप जगाई रखें और उसको उस सिचुएशन में कैसे आप अप्लाई करें जब आप उस सिचुएशन में आए तो। इसका तफसीली जवाब मैं आपको, ये जो हम कर रहे हैं ना सेल्फ असेसमेंट, इसके अगले टॉपिक में मैंने जो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन बनाया था उसमें ये आएगा। लेकिन बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक चीज पे टारगेट करें। टेक वन थिंग, थिंक अबाउट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू इम्प्रूव। आती है कोई ज़हन में? अब बताने की जरूरत नहीं है, बस आनी जी जी चाहिए। सर, बहुत यानी अरसे से आती है। समथिंग दैट यू, आती है, ओके। तो व्हाट यू डू इज कि अपने उस वाक्य को ज़हन में ले आए कि ये इस तरह होता है और मैं ये करता हूँ, और आइडियली मुझे ये करना चाहिए। ये दोनों चीजें हैं ना सामने। बिल्कुल, अच्छा अच्छा, ठीक, अच्छा, इमेजिनेशन में अब जाएं। ये करें। हाँ, ये यानी आपने पहले तो ये देखा कि मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है और मैं गाली बक देता हूँ। होना ये चाहिए कि नहीं, मैं बिल्कुल काम रहूं। ये देखें, दोनों मेरे पास ऑपोजिट रवैये आ गए। नाउ एक वो चीज है जो आप कर रही है और एक वो है जिधर आप पहुंचना चाहते हैं। अपनी इमेजिनेशन में वो करना शुरू कर दें कि जिधर आप पहुंचना चाहते हैं, एंड डू इट एवरी डे, मैनी टाइम्स। ये आपको, इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकंड ये करने में। आप इमेजिन करें पूरा डिटेल से, मैं ये गाड़ी में चाबी लगा रहा हूँ, दरवाजा खोला है, दरवाजे में बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट की है, पीछे की है, यहाँ से निकला हूँ, जाके कनाल रोड पे जब पहुंचा हूँ तो वहां पे बड़ी तेज से इधर से उधर से लोग जा रहे हैं, और मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जो मेरा आइडियल होना चाहिए मेरे लिए, मैं उस रवैये पे हूँ। ये जो पूरा सीन मैंने क्रिएट किया ना, इट टेक्स अबाउट 5 7 10 सेकेंड। जब मैंने एक दफा बना लिया उसकी डिटेल्स के साथ, इतना ही टाइम लगता है। इसको आपने रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है, एंड यू विल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कि ये वाकया जो है, अब जब आप गाड़ी में चाबी लगाते हैं मिसाल के तौर पर, जो जिस उस सीन में एंटर होने लगे हैं, तो आपके जहन में कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। कई दफा ये होगा कि फिर भी गुस्सा चढ़ेगा, कई दफा होगा, मतलब इट विल हैपन फॉर सम डेज, सम वीक्स में भी। इट टुक मी अबाउट, I think it took me about 2.5 months probably to get rid of my road rage by this, you know, this exercise of imagination. इसकी मैं डिटेल्स आपके साथ फिर बाद में शेयर करूँ, ठीक है जी? हाँ,
ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फिर हम इस पर क्या ये डिसाइड कर लिए जी, 5 लोग होंगे तो फिर हम शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, 5 कोरम। सर नहीं तो फिर वो लकी होगा जो अकेला होगा, वो आपसे 1-on-1 सेशन लेगा। हाँ, वो सही है, वो ये तो तो फिर मैं भी सही है। लकी होऊंगा। ठीक, सही। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक थैंक यू यू आपका सर। वेरी मच बहुत जी, थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।